Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you're fine, good and safe at your homes. Unit number 6, Work and Energy. The topic we'll discuss today is efficiency and power. Before moving toward the main topic, we'll take a look on a previous knowledge. So, starting from the first topic of your chapter, that was work. In the light of previous knowledge, you have to answer these questions. What does the work mean to you? There are few questions you have to answer. Lifting a weight. Walking with a big grocery in your hand. Completing your homework assignment. Writing an essay. These are the 4 situations you have to answer whether you are doing work or not. आपने ये बताना है बच्चों कि आपने वर्क पढ़ा था, कि वर्क क्या है. तो अभी आपको ये situations दी हुई हैं and you have to tell you are doing work or not. So moving towards the first one, lifting a weight. There are 2 cases. अगर आप किसी भी वजन को उठाते हैं and अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, so here is the case कि आप displacement नहीं कर रहे, आप move नहीं कर रहे, distance travel नहीं कर रहे, so you are not doing the work. And if you are walking in a certain way and आप थोड़ा सा distance travel कर रहे हैं, so you can say that you are doing work. Second is walking with a big grocery in your hand. Yes, you are doing work. ठीक है. Third is completing your homework assignment. So, in the light of physics, you are not doing work. Writing an essay, again you are not doing work. Okay, moving forward. Now, how can we define work? Work is defined as a product of force and displacement of an object in the direction of force. कि हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी मूव करती है इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स अप्लाइड. तो हमारे पास जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होती है उसका प्रोडक्ट जो होता है दैट इज डिफाइंड एज द वर्क. फॉर्मूला ऑफ वर्क इज W इज इक्वल टू F क्रॉस S. व्हाट इज F? F इज द फोर्स एंड S इज द डिस्प्लेसमेंट जो हम मीटर्स में लेते हैं. फोर्स हम लेते हैं, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर. सो एज अ कम्पैक्ट फॉर्म हमारे पास वर्क की यूनिट आ जाती है जाउल. क्या आ जाती है बच्चों? जाउल. सो अगेन रिपीटिंग, वर्क क्या है हमारे पास? वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड द बॉडी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज एनर्जी, which is important and fundamental concept in science. Almost all the natural phenomena depend upon the energy. So, we'll define energy as capacity of body to do work. Capacity of body to do work is called energy. Right? अब हमारे पास जो energy होती है, it is exist in a different form, like kinetic energy, potential energy, electrical energy, chemical energy, solar energy and nuclear energy. The unit of energy is joule, right? अब हमारे पास ये different आपको forms दी हुई है एनर्जी की, you can check them out. और हमने ये एनर्जी के टॉपिक में पीछे पढ़ के भी आए हैं. Now here we are with the main topic, that is power. Power क्या है हमारे पास? Power is defined as ability to do work. हमारे पास बॉडी की ability काम करने की is called to be the power. हम इसे कैसे समझते हैं? There are 2 person, 2 बंदे हैं, दोनों ने सेम काम करना है, कोई वजन उठाना है, वेट उठाना है. तो एक बंदा वो काम जल्दी कर लेता है विद इन 1 आवर, और दूसरा बंदा है वही काम देर से करता है. दोनों ने काम तो इक्वल किया लेकिन उनकी टाइमिंग डिफरेंट आ गई. ये जो उनकी टाइमिंग का डिफरेंस है ना, दैट इज पावर. जिसने जल्दी किया उसने कम टाइम लिया, मीन्स दैट उसके पास ज्यादा पावर है एज कम्पेयर टू द अदर पर्सन. सो we can define is the rate of doing work or the ability to do work. Rate of doing work or the ability to do work. Formula unit क्या है हमारे पास? The unit is watt. क्या unit है? Watt. हमारे पास it is a scalar quantity. ठीक है, हमारे पास जो पावर है, पावर हमारे पास scalar quantity है. Now formula क्या है पावर का? पावर का formula है work done divided by time. कि हमारे पास एक सर्टेन टाइम में कितना वर्क हो रहा है. फॉर द वर्क द यूनिट इज जाउल
एंड टाइम के लिए हमारे पास सेकंड की यूनिट आ जाता है। हम इसे सिंबल्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? P is equals to W divided by T. What? P is equals to W divided by T. W is work. वर्क है ना, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? हम पीछे पढ़ के आए हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमने वेलोसिटी पढ़ी थी सेकंड चैप्टर में। वेलोसिटी क्या थी? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट और टाइम को जब हम एक साथ करते हैं तो क्या बन जाती है? वेलोसिटी बन जाती है। सो पावर इज P इज इक्वल्स टू F इंटू V। ठीक है बच्चों। द पावर ऑफ अ बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट, कि जो बॉडी हमारे पास पावरफुल होती है वो स्ट्रॉन्ग भी होती है, वो फास्ट भी होती है। नाउ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, रिपीटिंग, कि हमारे पास क्या है काइनेटिक एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है बॉडी में ड्यू टू इट्स मोशन। एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड टू बी द kinetic energy. Formula for kinetic energy is half mv square, where m is the mass of a body and v is the velocity. SI unit is joule, right? Now moving forward, potential energy. Potential energy is energy possessed by the body or object due to its position or state. कि हमारे पास बॉडी की पोजीशन या उसकी स्टेट की वजह से जो एनर्जी उसके पास होती है, इट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। और वी कैन से दैट व्हेन द बॉडी इज इन द रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट की कंडीशन में होगी तो उसकी जो एनर्जी होगी दैट इज potential energy. Or shortly we can say the energy possessed by the body by the virtue of its position, right? अब हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है? mgh. Potential energy is equals to the mgh, where m is the mass, g is the gravity and h is the height, right? Now we know that कि हमारे पास ग्रेविटी भी कांस्टेंट होती है, ग्रेविटी भी कांस्टेंट नहीं होती, ग्रेविटी कांस्टेंट होती है, मास एंड हाइट जो बॉडी की वो चेंज हो सकते हैं, राइट? अब हमारे पास SI यूनिट जो है दैट इज द जूल। नाउ अ केट हैज अ पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट पोजीशन। कहता है हमारे पास ये केट है, इट इज एट अ सर्टेन हाइट दैट इज h हमारे पास, एंड m इज इट्स वेट एंड g इज द ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसे हम कहते हैं। तो कहता है हमारे पास जो केट है इट इज ऑन अ हाइट, सो इट हैज अ पोटेंशियल एनर्जी, राइट? सो प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, हमने पढ़ा था एनर्जी की कंजर्वेशन एंड कन्वर्जन के बारे में। तो यहाँ पे हम अगेन रिपीट कर रहे हैं कंजर्वेशन को, कि हमारे पास जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। हाउ? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। वी नो दैट दैट्स द लॉ, कि हमारे पास एनर्जी क्रिएट भी नहीं हो सकती और डिस्ट्रॉय भी। एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, लेकिन हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, दैट इज कन्वर्जन, कि हम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, लेकिन हमारे पास टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। Now here we can see that how energy transfer from one form to another form. सबसे पहले आप बच्चों देखें कि हमारे पास बुलेट है, बुलेट फायर हो रही है, तो वी नो दैट कि हमारे बुलेट के अंदर क्या होता है? केमिकल एनर्जी होती है ना, डिफरेंट केमिकल एनर्जीज होती हैं, केमिकल्स होते हैं, उन्हें एक जगह पे किया होता है। सो जैसे ही वो फायर करते हैं तो हमारे पास वो मूविंग कंडीशन में आ जाती है। जब वो मूविंग कंडीशन में आएगी तो हमारे पास क्या होगा? पहले वो रेस्ट की कंडीशन में थी, तो एकदम से मैंने आपको कहा था कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एकदम से तो नहीं ना गेन हो सकती। There is a small part of a kinetic energy and a small part of a potential energy in between this. जब यहाँ अपने हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाती है, जैसे हम समिट कहते हैं, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट को, तो जब कोई भी बॉडी अपनी हाईएस्ट पीक पे पहुंच जाती है तो वहां जाके फॉर नैनो सेकेंड्स रेस्ट की कंडीशन में आ जाती है। तो क्या होता है कि वो कहता है यहाँ पे बॉडी की क्या होगी? लेस काइनेटिक एनर्जी एंड मोर पोटेंशियल एनर्जी, कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कब आती है बॉडी में? जब वो रेस्ट की कंडीशन में होती है, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, और हाईएस्ट पॉइंट में वो स्लो डाउन भी हो जाती है, एंड फॉर अ नैनो सेकेंड्स जो उसका हाईएस्ट टॉप हाईएस्ट पॉइंट होता है वहां रेस्ट की कंडीशन में भी आती है। देन इट स्टार्टेड रिवर्स, कि वो दोबारा जमीन की तरफ अपने आने शुरू कर देती है। तो तब क्या होता है कि उसकी जो एनर्जी होती है
वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, राइट। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ। एंड जैसे ही वो आती है, ब्रस्ट होता है, जो हमारे पास गोली वगैरह होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक। मॉलिक्यूल्स वहाँ पे मोशन में आ जाते हैं ना, तो जैसे ही वो मोशन में आएंगे, तो जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो इट कंटेन्स काइनेटिक एनर्जी। आर यू डन? समझ आई? नाउ एफिशिएंसी। हम एफिशिएंसी पे आते हैं कि एफिशिएंसी क्या है। हमारे पास किसी भी मशीन को वर्क डन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। हम बॉडी को या फिर मशीन को एनर्जी देते हैं एंड वी से दैट एज अ इनपुट, कि हमने बॉडी को इनपुट या मशीन को इनपुट दिया। एज अ रिजल्ट वो हमें आउटपुट देती है। अब हमारे पास ये इनपुट एंड आउटपुट का आपस में जो रेशियो आता है, इसे हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं, राइट। हमारे पास ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि किसी बॉडी को, किसी मशीन को हम इनपुट दें एंड वो हमें 100% आउटपुट दे, ठीक। 100% आउटपुट हमें कभी भी नहीं मिलता। हमारे पास बहुत से काम हुए हैं, इसे कहते हैं टू फॉर्म एन आइडियल मशीन, कि आइडियल मशीन बनाना। एक आइडियल मशीन वो मशीन जिसे हम जितना इनपुट दें वो हमें उतना ही आउटपुट दे। ऐसा नहीं होता। अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है, ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा बच्चों इसलिए नहीं होता कि हमारे पास बहुत से एनर्जी लॉसेस होते हैं। एनर्जी लॉस कैसे होते हैं? फ्रिक्शन की वजह से। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से आपस में टकराते हैं, फ्रिक्शन होती है, हीट कॉज होती है कि वहाँ पे हीट बन रही है, तो उस पर भी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास वेस्ट हो जाती है। हम पूरी की पूरी एनर्जी यूटिलाइज कर ही नहीं सकते। हमारे पास कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी जरूर आती है आउटपुट की इनपुट से, ठीक है। लेकिन हमारे पास बेस्ट मशीन वो होती है जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, मींस दैट जिसके लॉसेस मिनिमम होते हैं। जितने लॉसेस कम होंगे उतनी बॉडी एफिशिएंट होगी। सो एफिशिएंसी ऑफ वर्क के लिए हम क्या करते हैं, वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। सो हियर इज द एफिशिएंसी ऑफ पावर, कि पावर की एफिशिएंसी के लिए क्या होगा, पावर आउटपुट, कि हमें कितनी पावर आउटपुट में मिल रही है, एंड देन पावर इनपुट। आप अपनी बुक में देखें तो आपकी बुक में एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला है रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय टोटल इनपुट एनर्जी, ठीक बच्चों। अब हमने यहाँ पे मेरे ख्याल में डेफिनेशन को मैंने ब्रीफली डिस्कस नहीं किया। एफिशिएंसी इज द रेशियो बिटवीन द यूजफुल पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर एंड द पावर दैट यू सप्लाई टू द इंजन, कि आप जब किसी भी मशीन को पावर देंगे, यूजफुल वर्क उससे गेन करेंगे, तो आपने जो सप्लाई की पावर एंड जो गेन की, द रेशियो बिटवीन दैम इज एफिशिएंसी। अब कहता है एफिशिएंसी की कोई यूनिट नहीं है, ठीक है बच्चों। आपने ये बात याद रखनी है कि देयर इज नो यूनिट ऑफ एफिशिएंसी, ठीक बच्चों। एंड हम इसे एक्सप्रेस कैसे करते हैं, परसेंट लगा के। ये जो परसेंट का साइन होता है ना, वो लगा के हम एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। So it was all about today's lecture. Hope that you are clear, and if anything is not clear, do ask. Thank you. Allah Hafiz.